Hello, everyone. Welcome back to HackerTV, the official podcast series of our hackathon ASAC 5.0. And yes, ASAC returns with its fifth edition, bringing innovation, execution, and real world problem solving skill on one single platform. And yes, dates already announced ho chuki hain. So please go and check it out and bring your innovative idea to make more impact on this real world. I'm your host, Kritika Sharma, and at ASAC, we celebrate people who don't just build projects. Basically, they dominate over competition, solve real problems, and push innovation under pressure. Today's guest is someone who truly embodies that spirit. Joining us today is Mr. Aaditya Srivastava, winner of Smart India Hackathon 2023, Geeks for Geeks National Hackathon, and top finisher across elite competition at SRCC, IIT Delhi, and IIT Ropar. He is known for building high impactful AI and tech-driven solution and for consistently performing highest level in every hackathon. Aditya, welcome to Hacker TV. It's great to have you with us today. How are you doing? I'm fine. I'm great. I'm having fun at this podcast, and thank you for such a superb introduction. So I'm Aditya Srivastava. So I've just completed my bachelor's in artificial intelligence and data science, and I started giving hackathons and these business plan competitions. I think at the start of third semester of a second year, and I have in starting I've lost a lot of hackathons, but gradually it built some confidence to give a lot more. So yeah, thank you for the superb introduction. Okay, thank you so much, Aditya. And if you would like to share some glimpse of your past hackathon with our hackers, Okay. it would be great. So the in starting I used to give like I didn't had confidence to go on stage and speak continuously. Like even in this podcast, I wouldn't have been able to speak like this back in second year. So I used to give the small hackathons on DevPost. DevPost is a site where a lot of hackathons are conducted right now. Up to like Google, Microsoft, like even Nvidia, a lot of pretty great hackathons are being held there. But at that time, it was a bit smaller site. तो जो भी communities होती थी वो अपना hackathon ऐसे like for $100 या $50 ऐसे कुछ वो organize करती थी 24 hours 36 hours ऐसे type के. So I used to give those in starting. I learned how to create the project based on what the theme was, and speak continuously for 5 minutes because demo में YouTube video एक create करनी पड़ती है. So at starting I realized कि मेरी तो communication skills में थोड़ा issue है कि मैं perfectly नहीं बोल पाता. तो ऐसे करके a lot of lose करा, but धीरे करके एक दो स्टार्ट मेरा फर्स्ट हैकाथॉन जो विन करा था वो सोलो हैक्स ऐसे था, and its prize was 8,000 rupees. So I won that. But after that, fortunately SIH में मेरी टीम का सिलेक्शन हो गया तो फाइनलिस्ट में, and then I was like I have to win this. तो हमने प्रोजेक्ट पहले ही क्या कहते हैं बहुत हद तक बना लिया था, even before submitting the PPT that you have to submit to be selected as finalist. तो वही PPTs मतलब उस PPT में ही जो प्रोजेक्ट बनाया था उसके स्क्रीनशॉट भी डाले थे. तो आई थिंक उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा जो भी चेक कर रहा था, क्योंकि हमारे कॉलेज से उस समय सिर्फ मेरी टीम ही सिलेक्ट हुई थी. तो देयर वाज अ डिस्कशन कि ऐसा क्यों हुआ. तो आई थिंक ये हो सकता है. बट हाँ ऐसे करके स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, देन फिर थोड़ा बहुत सोलो दिया लाइक गीक्स और गीक्स हैकाथॉन. उसमें मैं किसी के साथ नहीं गया था. आई डिडंट एक्चुअली थॉट अबाउट कि वहां पे जीतना या नहीं. मैंने बस रजिस्टर करा था उस समय. तो उन्होंने एक थीम दी थी
तो लाइक तो मुझे बनाना था एक, मैंने सोचा कि ओके गीक्स और गीक्स का प्लेटफॉर्म है, हाउ अबाउट आई वांट टू सेल सेल द आइडिया कि हाँ एक इंटरव्यूअर, एक एआई इंटरव्यूअर कैन बी क्रिएटेड बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट दैट गीक्स और गीक्स प्लेटफॉर्म हैज। तो मैंने वो बनाया था, तो उसकी वजह से उनको आइडिया बहुत अच्छा लगा कि इट वाज बेस्ड ऑन देयर प्लेटफॉर्म। तो दे दे क्राउन मी एज द फर्स्ट विनर। तो आई वन दैट, एंड आफ्टर दैट हाँ मैं कॉलेजेस में जाता था, लाइक SRCC, समटाइम्स IIT दिल्ली, रोपर। तो वहाँ पे मैंने बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन्स दिए हैं। लाइक इट्स डिफरेंट फ्रॉम हैकाथॉन। I think I'll clarify between them what difference the hackathon difference between hackathon और business class competition में क्या होता है। बट हाँ उधर बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन्स दिए थे, एंड उधर एक्चुअली मोर लाइक आपको PPT, उसकी मार्केटिंग एंड रेवेन्यू स्ट्रक्चर कैसे बनाना होता है, तो उस पे आपको फोकस करना पड़ता है। इट्स बेसिकली लाइक शार्क टैंक। तो ओके। हाँ, तो उधर ऐसे प्रेजेंट करना पड़ता था। उधर जो जजेस भी आते थे वो लाइक दे यूज टू हैव देयर ओन स्टार्टअप्स, तो दे जज बेस्ड ऑन दैट कि दीज आइडियाज दैट स्टूडेंट आर ब्रिंगिंग फॉर देयर बिजनेस प्लान आर वायबल और नॉट। तो वो देना स्टार्ट करा, एंड सरप्राइजिंगली आई थिंक इन बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन a person from technical background who knows how to make these projects uh, can actually dominate better than the MBA students that were there. Uh, it's the reason that I felt this was like for MBA people, they build a lot of very good PPT, very good marketing structure model. They know what they're doing, but at the end of the day, the product कि कैसा प्रोडक्ट होगा, तो द जजेस आर इंटरेस्टेड इन दैट। तो मुझे उस समय थोड़ा ऐसा फील हुआ, मे बी शायद अगर और लोगों को शायद पता हो कि बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन्स मतलब ऐसी ये भी चीज एग्जिस्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट हैकाथॉन जो ज्यादा टेक्निकल फोकस्ड होते हैं, तो मे बी शायद और लोग शायद ये भी कर सके। बट हाँ, सो आफ्टर दिस आई स्टार्टेड गिविंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। लाइक पहले जाना पड़ता था इधर अलग अलग फिजिकली जाना पड़ता था। तो एट सम पॉइंट आई वाज लाइक कि मैं फर्दर अपने ईयर ऑफ स्टडीज में हूँ, तो आई वांट टू जस्ट गिव फ्रॉम माय होम, comfort of my home. So I started giving hackathons which were bigger in price, like on DevPost. Yeah, the Dora Hacks is a pretty good site for blockchain, for hackathons related to blockchain. So I ओके। gave some on those. And I think latest one I gave the ETH Delhi hackathon, like the first ETH global hackathon that was in Delhi. So we won that. I went with my friend and we won that. So this is like a summary of those 2 to 3 years. Hmm. दैट्स रियली ग्रेट सर। एंड लाइक इसमें आपने काफी सारे एस्पेक्ट्स कवर कर दिए, लाइक आपका फर्स्ट हैकाथॉन एंड लाइक आपने जो सोलो हैकाथॉन किया था उसके बारे में भी आपने बताया कि लाइक सोलो हैकाथॉन ऐसा नहीं कि हम सोलो हैकाथॉन में जीत नहीं सकते, वी कैन मेक प्रोजेक्ट ऑन बाय आवरसेल्फ एंड वी कैन विन आल्सो। तो उससे कुछ नहीं कि लाइक हम टीम लेके जाते हैं तो ही कुछ हो सकता है, नहीं, वी कैन डू एवरीथिंग विद आवर सेल्फ ऑल्सो। तो हमारी सोलो टीम जो हमारी आने वाली है अब हमारे हैकाथॉन में, उनके लिए काफी अच्छा मोटिवेटिंग थिंग है। एंड आगे हम यही पूछना चाहेंगे, लाइक आपने गीक्स फॉर गीक्स नेशनल हैकाथॉन जो है सोलो पार्टिसिपेट किया था, सो क्या आपकी स्ट्रेटेजी रही, किस तरीके से आपने प्रेशर को हैंडल किया, लाइक सब कुछ आपको ही करना था, सो किस तरीके से आपने एग्जीक्यूट किया अपने प्लान को जिस वजह से आप फर्स्ट प्राइज जीत पाए सर, तो वो आप बताएं तो। Like for strategy, actually, the strategy depend on the type of hackathon. So बहुत टाइप ऑफ हैकेथॉन्स होते हैं। एक होता है कि जो ऑन द स्पॉट, लाइक SIH 36 hours कंटिन्यूसली उधर बनाना है, तो या तो आप थोड़ा सा पहले बना के ले आओ। आप अगर फाइनलिस्ट बनते हो तो SIH आपको मेल करता है कि स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट बिफोर कमिंग हियर, इट वुड बी बेटर। But let's say some hackathon is like they on live theme will be given, and it's like within time limit you have to make.
So a different kind of strategy is created against the Geeks for Geeks one. It was actually said announced to 1 month ago. Ki, these are the themes and build something on that. And the day Geeks for Geeks hackathon, that was in, I think, their Noida office. So पार्टिसिपेंट्स जिसने भी जो भी बनाया है वो वहां आके प्रेजेंट करे, 2 स्टेज में प्रेजेंट करना था। तो Okay. तो टाइम लिमिट के हिसाब से अलग अलग स्ट्रैटेजी बनती है। सो सोलो में आई थिंक आप एडवांटेज ये ले सकते हो क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम है। फॉर गीक्स फॉर गीक्स तो आपके पास ज्यादा टाइम है, तो आप आराम से चीजें बिल्ड कर सकते हो। यूजुअली मेरी थोड़ी पहले की लर्निंग ये रही थी जब मैंने ग्रुप में काम करा था इन हैकेथॉन। देर यू नीड सम लाइक माइंडेड पीपल, वरना फ्रिक्शन क्रिएट होता है। आप बहुत चीजें और इवन अगर कुछ हर्डल्स आ गए तो आप नहीं कर पाते। तो अगर आप फिर सोलो ट्राई कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अब तो आई थिंक इस डे एंड एज में तो ज्यादा इजी है क्योंकि आप एआई से और बेटर प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, तो Mm-hmm. और फास्ट क्रिएट कर सकते हो। तो Yes. हाँ, तो फॉर गीक्स क्योंकि 1 मंथ था एंड कोई और टीममेट नहीं था, तो आई वॉज एबल टू टेक फुल ओनरशिप की जो मैं बना रहा हूँ। तो आई हैड एन आइडिया, तो उसको मैं बनाता गया। एंड उस समय आई थिंक मतलब चैट जीपीटी था और वो सब था, बट इट वॉजंट दैट गुड एट दैट टाइम। उस समय मतलब चैट जीपीटी वॉज वेरी इन इट्स इन्फेंसी जब आया था वो। तो मैं फ्री वर्जन ही थोड़ा बहुत यूज करता था कि ये दिक्कत आ रही है, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो डीबगिंग और उसमें यूज हुआ। बट हाँ, अब आई थिंक अगर मैं सोचूं तो वो प्रोजेक्ट ज्यादा जल्दी बन सकता है क्योंकि अब एआई बहुत सारी चीजें हैंडल कर लेगा, क्लॉड या फिर जेमिनाई जो भी आप यूज करते हो। तो स्ट्रैटेजी डिपेंड करता है कि आप का टाइम फ्रेम क्या है। तो आपको अपनी बैटल पिक करनी होती है। हैकेथॉन्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, आपको चूज करना है कि आप कौन से में पार्टिसिपेट करना चाहते हो जिसमें आपको एडवांटेज मिले। So, if I talk about giving solo, I would prefer saying कि pick one hackathon instead of multiple। आप चूज कर लेते हो और आप बहुत सोचते हो कि हाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना लोगे, सब में भेज दोगे। पिक वन, एक कुछ रिसर्च कर लो कि जो कंपनी जो ऑर्गेनाइज कर रही है, लाइक देर आर दिस हैकेथॉन जो, ये भी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है कि हैकेथॉन कंडक्ट करवा कौन रहा है। जैसे कुछ कॉर्पोरेशंस होते हैं, तो कॉर्पोरेशंस का होता है कि मेरा ये प्रोडक्ट है, आई वांट कि इस प्रोडक्ट के यूज केस पे एक हैकर मतलब प्रोजेक्ट्स मिले मुझे। तो विनर उन्हीं को चूज करेंगे जिन्होंने सबसे बहुत बेहतर प्रेजेंट करा, ताकि वो बाद में ऐसे किसी आर्टिकल में या फिर ऐसे दिखा पाए कि हाँ हमारा प्रोडक्ट से ऐसे कुछ चीजें बन सकती हैं। तो तो आपको उस थीम के हिसाब से बनाना होता है। तो गीक्स फॉर गीक्स के लिए मैंने पूरे, मुझे उनको वैसे तो वी ऑल नो कि गीक्स फॉर गीक्स क्या है, तो फिर Mhm. आई जस्ट Yes. सर्च एंड ट्राई कि कुछ ऐसा बना सकूं जो दे कैन ऑल्सो शो कि हाँ ये हमारे हैकेथॉन में बना था एंड दिस कैन बी समथिंग वी कैन इंटीग्रेट। तो क्योंकि उस समय आई थिंक एआई जस्ट आ रहा था, कुछ एआई एजेंट्स या एमसीपी सर्वर्स ये सब को ऐसा कुछ था नहीं। तो आई थिंक गीक्स फॉर गीक्स वांटेड कि मतलब एआई का क्या यूज केस हो सकता है, तो दैट्स व्हाई आई वांट, दैट्स व्हाट आई थिंक, इसलिए हुआ था। तो हाँ, एंड जैसे अगर गवर्नमेंट हैकेथॉन होता है लाइक एसआईएच, तो आपको लाइक इवन गवर्नमेंट में भी आपको फिर जो भी थीम दी हुई थी उसके बेसिस पे आपको फिर अब क्रिएट करना होता है। और आई थिंक मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, लाइक एक भाषिनी हैकाथॉन दिया था। भाषिनी इज मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म की, वहाँ पे इंडियन नेटिव मतलब इंडिया में बहुत सारी जो नेटिव लैंग्वेजेस होती हैं, तो उसकी एक एपीआई वो क्रिएट कर रहे हैं ताकि हर एक इवन स्मॉल से स्मॉल लैंग्वेज भी मतलब उसकी ट्रांसलेशन बन सके। तो उनको चाहिए था कि हाँ आपको हम 2 मंथ्स का टाइम दे रहे हैं, आप इस पे बनाओ। तो जब 2 मंथ्स का टाइम होता है, बट एट दैट टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा थी, तो हम थ्री थ्री पीपल काम कर रहे थे। तो आपको चूज करना पड़ता है कि आप सोलो कर रहे हो या फिर किसी की हेल्प ले लो, तो लाइक माइंडेड पीपल को चूज करो। तो हाँ,
these were the strategies that I would say. हाँ. Yes, sir. These strategies really very much helpful for all our hackers, which are मतलब जो solo participate करने वाले हैं, हम्म, and like extremely practical है sir. Like solo participation में सब ये सोचते हैं कि like सारा burden हमारे पे आ जाएगा. नहीं, हम्म, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक एक प्रोजेक्ट चूज कर लें एंड उसके ऊपर आप अपने इनोवेटिव आइडियाज ऐड कर सकते हैं एंड मेक सम ट्रांसफॉर्मेशंस एंड यू कैन प्रेजेंट दैट प्रोजेक्ट इन मल्टीपल हैकाथॉन्स हम्म, एंड आप हैकाथॉन्स में जीत भी सकते हैं इससे. एंड यू हैव सेड दैट आप एआई का यूज किस तरीके से कर सकते हैं. तो आपके पास्ट एक्सपीरियंस आपने ये गाइडेंस दी कि लाइक हाउ कैन वी इंटीग्रेट एआई इन आवर प्रोजेक्ट सो दैट we can make it in better way. हम्म. So it's a really practical guidance given by you, sir. Sir, the next question is like many people say that better data beats better models. हम्म. Like in hackathon, what quick data cleaning and feature engineering tricks usually given the best performance boost? लाइक ये आई थिंक थोड़ा उस एमएल से रिलेटेड हो गया, लाइक जो प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन कैगल या समथिंग Yeah, उस yeah, पे yeah. होते हैं. हाँ. Yes. तो इन माय एक्सपीरियंस एक्चुअली जो हैकाथॉन्स दिए हैं इससे रिलेटेड, उसमें जो भी जैसे एक्सेल शीट है या सीवी फाइल है, तो यूजुअली दे गेव ऑलरेडी क्लीन्ड डेटा, लाइक एक स्ट्रक्चर्ड डेटा मिलता है, उस पे हमें एनालिसिस करके आई वी हैव टू आइदर ट्रेन अ मॉडल और समथिंग, और एक्यूरेसी compete करनी होती है कि किसका मॉडल हाउ एक्यूरेट इज दिस. Okay. तो डेटा क्लीनिंग में एज सच आप बस जैसे नॉर्मलाइजेशन एंड थोड़ी बहुत ये ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग, ये जो नॉर्मल चीजें वही कर सकते हो. आपको यूजुअली हैकाथॉन्स में एक मोर स्ट्रक्चर्ड डेटा ही मिलेगा. अगर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वाला कोई हैकाथॉन है भी, तो यस, जो प्राइमरी वेज होते हैं कि आप जैसे वही है, डुप्लीकेट्स हटा दो. वो एक्चुअली डिपेंड करते हैं, बहुत टाइप ऑफ वेज होते हैं, वो उस डेटा पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा मिला है. लाइक मे बी आपको ना ऑन पर्पस वो ओवर फिटेड या अंडर फिटेड डेटा दे दें, तो आपको खुद ही फिगर आउट करना पड़ता है. तो बेस्ट वे आई थिंक ये है कि आप एआई से वो जो डेटा है उसका एक सैंपल लेके आप पेस्ट करके बोल लो कि इस जो जो भी हमें ये डेटा मिला है, इसमें इश्यूज क्या हैं. तो आपको पहले थोड़ा थोड़ा एक आइडिया दे देगा कि हाँ, पूरा डेटा डिसेंटली स्ट्रक्चर्ड है. वन हॉट इनकोडिंग या तो आप कर सकते हो, फिर ये फीचर इंजीनियरिंग में आ गया कि अच्छा ठीक है, जो भी आपका डेटा मिला है, इजी वे में बताऊं तो लेट्स से रेड ब्लू या ग्रीन में मिला है, तो आपको बस वो बाइनरी वे में शो इंडिकेट करना है. तो रिक्वायरमेंट्स आप पेस्ट कर सकते हो एआई में, और कुछ सैंपल पेस्ट कर सकते हो, तो आपको इश्यूज मिल जाएंगे. तो उसके बेसिस पे आप फिर फास्ट ट्रैक कर सकते हो. आपको फिर फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है कि अच्छा मुझे क्या करना है इधर. तो यूजुअली इन हैकाथॉन्स में आपको आई थिंक एक्यूरेसी आपको दिखानी पड़ती है, एक्यूरेसी एंड एफिशिएंसी. तो यस, जैसे आई थिंक मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ. क्या एक हैकाथॉन में बनाया था मैंने एक मॉडल. इट वाज समथिंग रिलेटेड टू कि लाइक 0 to 9 नंबर्स हैं, जो भी कोई ड्रॉ कर रहा है उसको एक एम एल डी एस टी ए एक डेटा सेट था, और वो मुझे मिला था. तो मुझे पहले तो उसको क्लीन करना था उस डेटा को, और उस डेटा में से मतलब जो लाइक सबसे बेस्ट डेटा होगा कि जो हाँ, नॉइज को हटा सके. हाँ, देयर वर इन दैट डेटा सेट अ लॉट ऑफ नॉइज वाज देयर. तो मुझे पहले तो फीचर क्या कहते हैं एक्सट्रैक्ट करना था उसमें से, और सिलेक्शन करना था, और फिर स्केल करना था. तो उससे फिर फाइनली एक 93-94% एक्यूरेसी वाला एक मॉडल बना था, जो एक्यूरेटली आपको नंबर प्रिडिक्ट करके बता सकता है. तो ऐसे करके हाँ, जो भी ट्रेडिशनल वेज होते हैं आपको वही अप्लाई करना पड़ता है. कुछ बहुत हाई फाई चीज तो आई डोंट थिंक होगा, और अगर होगा तो आपको फिर वो एआई से हिंट मिल जाएगा जब आप सैंपल और वो पेस्ट करोगे. Yes, sir. That's really a very practical guidance given by you, so that student apply कर सकते हैं. Like big data set अगर उन्हें मिला है, तो how should they deal with that?
ये आपकी गाइडेंस से उन्हें पता चल पाया। एंड सर, आपने जैसे काफ़ी इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया है। सो लाइक क्या एक ऐसा हिडन कोई क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे लाइक जजमेंट होता है, लाइक पार्टिसिपेंट्स जिस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाते हैं, तो आई थिंक द बिगेस्ट हिडन क्राइटेरिया तो आई थिंक मुझे जो लेटर रियलाइज हुआ वो एक्सपीरियंस ही है कि मैं कंटिन्यूसली बहुत सारे हैकाथॉन्स आ रहा, तो आई रियलाइज्ड कि स्टार्टिंग में जब आप प्रोजेक्ट देते हो तो यू आप सोचते हो कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया वो बहुत अच्छा है, और नाउ यू वांट कि क्या कहते हैं वो बस जीत जाए। बट वो एक्चुअली हर बार ऐसा होता नहीं है। यू हैव टू थिंक लाइक कि आप भी वही जज हो, या आप भी वही कंपनी के ओनर हो, या आप भी वही गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो चेक कर रहा है, जो देख रहा है कि उसको कुछ ऐसा विनिंग प्रोजेक्ट चाहिए जो उसके यूज केस को बहुत अच्छे से शोकेस कर रहा है। तो एक शिफ्ट आया है, आई थिंक प्री चैट जीपीटी या फिर कुछ एलएलएम मॉडल्स। पहले होता था कि पहले अलाउड नहीं होता था कोई कोड बाहर से लिखना, सिर्फ आपको खुद कोडिंग करके एक हैकाथॉन में प्रेजेंट करना होता था। ओके। तो तब बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया जाता था कि हाँ, आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है आपको खुद ही बनाना है, और ये सब है। तो तो आई थिंक कोई रिएक्ट का डिसेंट प्रोजेक्ट बना लेता था उस टाइम फ्रेम में, तो फिर वो जीत जाता था। अब एक्चुअली वैसा केस है नहीं अब, ऑल्दो हैकाथॉन्स और बिजनेस प्लान कॉम्पिटिशन का प्राइस अमाउंट है वो बढ़ गया है। वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि अब सबने अपने एआई इंटीग्रेटेड, या फिर अगर एआई से हट हट के भी कहीं कोई फ्रेमवर्क इंटीग्रेटेड, जैसे स्विफ्ट का कोई हैकाथॉन हो गया, तो अब फ्रेमवर्क इंटीग्रेटेड या कोई भी जो भी उनको चाहिए कि ये मैंने बना, ये हमारा ये प्रोडक्ट है, इसका इंटीग्रेशन हैकाथॉन के प्रोडक्ट्स में कैसा हो सकता है। तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट कि ओके, मुझे कुछ ऐसा बनाना है जो इनके प्रोडक्ट में इंटीग्रेट होके ऐसा लगे कि हाँ, दिस इज समथिंग लाइक दे कैन शो देयर इन्वेस्टर्स और इवन ऑन सोशल मीडिया कि दिस प्रोजेक्ट वाज मेड पॉसिबल बाय अस। लाइक आई रिमेम्बर कि एक एक्स एआई का हैकाथॉन हुआ था अभी। ओके। उसमें किसी ने उनका एक्स एआई का उनका एआई क्या था वो, कुछ एआई एपीआई यूज करी थी, और उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था हाफ टाइम, वो ट्विटर पे बहुत पॉपुलर हुआ था। बेसिकली इट वाज लाइक कि टीवी शोज के बीच में, इंस्टेड ऑफ कि क्या कहते हैं, लेट्स से ये डिटॉल का ये है, तो टीवी शोज में आपने बस ऐसे दिखा दिया कि हाँ, ये एआई ने ऐसे दिखा दिया कि ये प्रोडक्ट है, और आपने उसको एडवर्टाइज कर दिया। तो एआई बहुत स्मूथली ये बना सकता है। तो इट वेंट वेरी पॉपुलर। क्या कहते हैं उनका जो वीडियो इंजन था उस एपीआई का, तो प्रिटी गुड था। तो आपको इस तरीके से थोड़ा सोचना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ कि हाँ, मुझे क्या पसंद आ रहा है, आपको देखना है कि इंटीग्रेशन उसका कैसा कितना अच्छा है। तो अब कोई हिडन क्राइटेरिया, आई थिंक सबसे पहले यही है कि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस में भी शायद लेना पड़ेगा, या फिर आप ये पहले ही अंडरस्टैंड कर लो कि हाँ, आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है इट शोज कि दिस इज वेरी गुड फॉर द कंपनी इटसेल्फ, आप उनके लिए बना रहे हो, तभी आपको वो फिर कोई प्राइज देंगे। सेकेंड बीइंग कि अब गवर्नमेंट हैकाथॉन्स में इट्स यूजुअली कि अगर एसआईएच के एक्सपीरियंस से बता सकूं, इवन पांच नहीं, कि दे वांट समथिंग दैट कैन स्केल, यू हैव टू सेल इट एज इफ, थोड़ा शार्क टैंक आजकल हो गया है ये सारे हैकाथॉन्स। दे वांट कि जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो बस सिर्फ हैकाथॉन्स के लिए ही नहीं है, वो फॉर जनरल पब्लिक के लिए भी वो यूज केस हो सके। तो इवन इन एसआईएच हमने स्टार्टिंग से ही, जैसे 3 फीडबैक्स होते हैं जब आप एसआईएच में जाते हो, तो 36 आवर जब स्टार्ट होता है तो जजेस पहले आते हैं, वो आपको कोई फीडबैक देते हैं आपके प्रोजेक्ट पे। सबको अराउंड द सेम फीडबैक मिलता है। जैसे मेरे 5 कॉम्पिटिटर्स थे, हमारी टीम के 5 कॉम्पिटिटर्स थे, तो सबको सेम फीडबैक मिलता है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट फीडबैक आता है, फिर वो कुछ चेंजेस कहते हैं, आपको वो इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ये डिफरेंट हो सकता है। फिर थर्ड फीडबैक पे आते हैं। तो थर्ड फीडबैक तक आई थिंक ऑलमोस्ट डिसाइड हो जाता है कि हाँ, कौन जीत रहा है वो। तो यूजुअली हमने स्टार्टिंग से ही ऐसे शो करके दिखाया था कि आर प्रोजेक्ट कैन स्केल,
हमने लिमिटेशन नहीं रखी थी कि हाँ एक लिमिटेड डेटा सेट पे हमारा पूरा प्रोजेक्ट था। हमने पूरा जो को आई थिंक आईटी ट्रेनिंग सिस्टम कुछ बनाना था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। तो ओके। हमने पहले ही बोल दिया कि ओके वी कैन एक्चुअली यू कैन एक्चुअली इंटीग्रेट आवर प्रोजेक्ट इनटू एनी इनटू लाइक यूट्यूब डेटाबेस और आपका अपना इंटरनल डेटाबेस। तो हमने इस तरीके से उसका एंड पॉइंट का स्ट्रक्चर बनाया था। तो वो उनको बहुत पसंद आया था। तो गवर्नमेंट हैकाथॉन्स में यूजुअली वो स्केल को देखते हैं। और क्योंकि स्केल का मीनिंग एफिशिएंसी है। आप जितना बेटर स्केल कर पाओगे उतना एफिशिएंट होगा। अब बाकी इंटरनेशनल हैकाथॉन्स पे इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपको बस बोलेंगे कि ये हमारा ये प्रोडक्ट है। लाइक अभी लाइक ये हमारा एनएफटी का एनालिसिस वाला एपीआई है। एंड पॉइंट्स है, आप इससे जो भी एक्साइटिंग बना सकते हो बनाओ। तो आपको उस एपीआई या फिर उस एलएलएम एजेंट या जो भी आपको दिया उसके बेसिस पे ही आपको प्रोजेक्ट बनाना है। अब वो एक्साइटिंग हो सकता है क्योंकि लाइक वो जरूरी नहीं है कि स्केल करे। अगर वो कहते हैं कि आप कुछ स्केलेबल बनाओ तो वो प्रिटी सीरियस हैकाथॉन होगा, लाइक सम काइंड ऑफ एक्सेलरेटर और समथिंग। तो वो तब हो सकता है, बट वरना आपको कुछ एक्साइटिंग करने के लिए बोलते हैं तो वो कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो सोशल मीडिया पे प्रेजेंट कर सके। तो यूजुअली ये सारे इंटरनेशनल हैकाथॉन्स ऑनलाइन ही होते हैं। तो आप हाँ ये थोड़ा डिफरेंस आता है कि इंस्टेड ऑफ स्केलिंग के आप कुछ ऐसा बनाओ जो प्रिटी कुछ अच्छा करके दिखा दे, जैसे हाफ टाइम ने दिखाया था कि अब आप टीवी में एड भी क्या कहते हैं एआई जनरेटेड होगा तो कितना ज्यादा कॉस्ट बच जाएगा। तो ये नहीं सोचा कि अभी उसका लीगल इम्प्लीकेशंस क्या होगा, वो कैसा होगा। दैट्स द साइट, वो बस बहुत एक्साइटिंग दिख रहा है। तो दिस इज द समथिंग आई थिंक हिडन क्राइटेरिया आपको रियलाइज करना पड़ता है इंटरनेशनल और गवर्नमेंट हैकाथॉन्स में। Yes, sir. That's really a perfect thing. Like how impactfully like आपने इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट हैकाथॉन्स में किस तरीके से आपको जजिंग क्राइटेरिया एज वेल एज आपको किस तरीके से पार्टिसिपेट करना है उस गाइडेंस के लिए काफी एक परफेक्ट गाइडेंस है सर। एंड सर लाइक विथ AI, Web3, REG system and full stack tool in your project, so how did you decide that what's a right tech stack under extreme time pressure, like without getting over engineering? हाँ एक्चुअली आई स्टार्टिंग में मैंने ज्यादातर वेब वेब से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ही बनाए हैं। तो एक्चुअली आपको वेब से रिलेटेड ही टेक स्टैक के इंटीग्रेशंस करने के लिए अब ज्यादा बोलेंगे हैकाथॉन्स में। बट हाँ, तो मैंने स्टार्टिंग से ही चूज कर लिया था नेक्स्ट जेएस टेलविंड, क्योंकि बहुत मैंने टेलविंड सीख लिया था उसके बाद, और फिर टाइप स्क्रिप्ट सीख लिया था। टाइप स्क्रिप्ट एक्चुअली प्रिटी इंपॉर्टेंट है इस सब में, क्योंकि बहुत सारी एरर्स जो जावास्क्रिप्ट में अनइंटेंडेड एरर्स आती हैं आपको ऐसे पता नहीं चलेंगी, पर टाइप स्क्रिप्ट में क्योंकि टाइप सेफ्टी आप देयर इज ऑल लाइक बहुत सारे चलो मैं टेक्निकल चीजें बोल देता हूँ, मे बी जो लिसनर्स होंगे वो समझ जाएंगे। तो जॉर्ड का इंटीग्रेशन से आप टाइप से चीजें रख सकते हो ताकि जो भी यूजर इंफॉर्मेशन एंटर कर रहा है वो इंटेंडेड ही हो, वो आगे जाके कुछ एरर क्रिएट ना कर दे। क्योंकि वर्किंग विद एआई इंटीग्रेशन इवन रैग सिस्टम, ये थोड़ा वो होता है कि जो इनपुट डेटा है वो प्रिटी गुड होना चाहिए, मतलब वो वही होना चाहिए जो इंटेंडेड है, वरना वो इश्यूज क्रिएट कर सकता है। तो यस, मेनली नेक्स्ट जेएस टाइपस्क्रिप्ट टेलविंड, इसका तो अब आजकल बॉयलर टेम्पलेट भी आ गया है तो लोग डायरेक्टली वो यूज कर लेते हैं। तो ये यूज करता था मैं। और बाकी फिर एआई के लिए मैंने सिर्फ ओपन एआई के क्रेडिट्स ज्यादा यूज करे हैं बिकॉज दे आर मोर चीप। आई एम नॉट श्योर कि अभी भी यही केस है, मेरे पास अभी भी क्रेडिट्स पड़े हैं, बट हाँ वो चीप उस समय भी थे तो अभी भी हैं, तो आई थिंक वो यूज करता था। बट ओवर द टाइम कुछ एक्स वही था, और मैंने ज्यादा इंटरनेशनल हैकाथॉन फिर देने स्टार्ट करे तो ओवर द टाइम हो गया कि अब कुछ एक्साइटिंग बनाना है। तो ब्राउजर में रिसेंटली साइड पैनल वाला फीचर आया है, जैसे एक्सटेंशन में पॉपअप ऐसे ड्रॉप होता है, वही एक्सटेंशन अब आया तो साइड पैनल खुल सकता है। Okay. तो अब एक्सटेंशंस बनाने सीखे। एक्सटेंशंस बनाने में थोड़ी लिमिटेशन आती है क्योंकि वो एक तो HTTP सेफ नहीं होता,
प्लस आप थोड़ी लिमिटेशंस इसमें होती है, नोड के सारे पैकेजेस उसमें यूज नहीं हो सकते, तो एक्सटेंशंस बनाए तो वो थोड़ा एक्साइटिंग लगा कुछ हैकाथॉन्स में, तो उसकी वजह से जीता। फिर धीरे धीरे आई थिंक क्योंकि फिर मैंने मैकबुक ऐसे परचेज करा, तो फिर ताकि मैं स्विफ्ट एप्स बना सकूँ, तो मैक ओएस में मैंने नेटिव एप्स बनाए। तो इट इट डिपेंड्स कि आप क्या एक्साइटिंग या कुछ बनाना चाहते हो। तो राइट टेक स्टैक तो आई थिंक इज समथिंग जो आपको ज्यादा पसंद है, वो डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारे लोग अब आजकल बन यूज करते हैं क्योंकि वो फास्ट है। मैं नेक्स्ट मैं नेक्स्ट और नोड का कॉम्बिनेशन करता हूँ क्योंकि वो रिलायबल है, बस मेरी बस उससे आदत है इस ऐसे। तो एक्सट्रीम टाइम प्रेशर में तो आई थिंक यू शुड गो वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विद। इफ यू थिंक यू हैव समथिंग जो एक्साइटिंग है, या फिर अगर स्केलेबिलिटी वाली बात है, तो आप वो सर्च करके पहले से ही डिसाइड करो। बट जस्ट डोंट फंबल कि हाँ आप उस समय कुछ और सोच रहे हो। बट यस, आप पहले से ही डिसाइड करके रखो। अब वेब 3 की बात आई, आप जो वॉलेट है, राबी वॉलेट यूज कर सकते हो। मेटामास्क का लोग यूजुअली यूज करते हैं, राबी थोड़ा ज्यादा डेवलपर फ्रेंडली है आई थिंक। तो आप वो यूज कर सकते हो, आप बर्नर वॉलेट pretty इजिली बना सकते हो। तो इट्स डिपेंड, ये आई थिंक आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ ना आपको अपना कंफर्ट जोन भी मिलता जाता है कि आप क्या ओवर द टाइम यूज करते हो, तो वही आपकी हैबिट बन जाती है। तो आई थिंक दैट इज द राइट टेक स्टैक फॉर ऑल द हैकाथॉन्स। Perfect, sir. That decision making framework is incredibly valuable for all our hackers who are going to participate in the hackathon. So, like you have built projects like AI interviews simulator and real time AI search engine, right? You have discussed about it. So, what makes a hackathon project more memorable, not just technically correct? मोर मेमोरेबल इज आई थिंक दैट एक्साइटिंग फैक्टर, कि जो आई थिंक मे बी शायद आपको लगे कि थोड़ी हाइप क्रिएट हो सकती है। एक्चुअली अक्रॉस द टाइम ही चेंज होता गया। जैसे जब स्टार्टिंग में एसआईएच के टाइम पे उस समय एआई एपीआईज तक ही थी, कुछ एआई एजेंट्स या एमसीपी सर्वर्स ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था। तो तब बस ये था कि या तो ओपन सोर्स आप एलएलएम यूज कर सको या तो एपीआई यूज कर सको, तो यू आर लिमिटेड टू क्या आप एक्साइटिंग चीज बना सकते थे। तो इमेज मॉडल तब उतने अच्छे थे नहीं। तो हाँ, उस समय फिर ये था कि क्योंकि एआई बेसिकली कॉन्टेक्स्ट क्या कहते हैं, रीड करने में उस समय मेमोरी उतनी अच्छी थी नहीं, बट वो बोलने में बहुत अच्छा था। रैंडम चीजें भी हेलुसिनेट भी कर दे तो भी ऐसा लगता था कि सही बोल रहा है। तो इट बिकेम लाइक कि हाँ ठीक है, आई थिंक एक एआई इंटरव्यू सिमुलेटर प्रिटी गुड रहेगा अक्रॉस द टाइम। जैसे जैसे कॉन्टेक्स्ट विंडो बढ़ती जाएगी, हर कुछ मंथ में नया एआई मॉडल लॉन्च होता है, उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो और अपग्रेड होती है, और आप रैक सिस्टम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इंटरव्यूअर के लिए तो एक रैक सिस्टम और एक नॉर्मल सा ओपन एआई का एपीआई यूज कर लिया था। तो अक्रॉस द टाइम मेमोरेबल चीजें बदलती रहती हैं, क्योंकि जैसे अब जो वीडियो मॉडल्स हैं वो इतने ज्यादा अच्छे हो गए हैं कि आई थिंक कोई एक एक्साइटिंग प्रोडक्ट इनसे बन सकता है जो आप सोच सकते हो। जैसे वो हाफ टाइम वाला आइडिया प्रीटी अच्छा था। एआई सर्च इंजन वाला जो प्रोजेक्ट, वो तब जीता था जब आई थिंक वो सब बात स्टार्ट हुई थी कि ब्राउजर में भी अब एआई सब कुछ आपका हैंडल कर लेगा। तो इट्स लाइक कि जो स्पेसिफिक वो टाइम पीरियड है ना, अगर आप सोशल मीडिया से भी आप छोड़ दो, आप बस कुछ यूट्यूब, टेक्निकल यूट्यूब या फिर टेक ट्विटर से आप थोड़ा ऐसे देखते हो, आप क्या कहते हैं उसमें इन्वॉल्व हो, तो आपको पता चलता रहेगा कि किन चीजों पर बात हो रही है। उस समय एक्साइटिंग ये था कि एआई सर्च इंजन अभी आने वाले हैं, कोडेक्स रिलीज होगा, या फिर क्या कहते हैं गूगल भी अपना इंटरनल ऑफलाइन मॉडल इंटीग्रेट कर देगा क्रोम में। तो एआई सर्च इंजन तब बना लिया था। तो तो जो मेमोरेबल है, इट्स बेस्ड ऑन परसेप्शन, उस समय क्या एक्साइटिंग है। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले क्लॉबॉट, अब तो मोल बॉट नाम हो गया, बेसिकली बेसिकली इट्स
अब इजी वे में आई थिंक मैं ऐसे बता सकता हूँ कि रैक सिस्टम ही है वो, बट इट जेन्युइनली डज द वर्क, क्योंकि एआई हेलुसिनेट बहुत करता है। तो बट क्लॉबट इंश्योर करता है कि वो काम हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से इजी वे में ले लो। तो अभी आई थिंक कुछ इससे रिलेटेड चीज बनेगी एमसीपी सर्वर्स के इंटीग्रेशन से क्लॉबॉट को यूज करके। तो दैट कैन बी अ मेमोरेबल थिंग। वरना तो अगर कोई थीम दी हुई है तो थीम में तो आप थोड़े कंस्ट्रक्ट हो जाते हो, बट द बेस्ट यू कैन डू कि कुछ ऑनलाइन से आप इंस्पिरेशन लेके उठा के देख सकते हो। आई थिंक एक एडवाइस आई विल गिव फॉर दिस इज, आप डेफ पोस्ट पे विन डेफ पोस्ट या डेफ फोलियो आप चेक कर लो कि कौन से हैकाथॉन्स में कौन से प्रोजेक्ट्स जीत रहे हैं। मे बी जो आपका जिस हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो वो उस हैकाथॉन की मे बी शायद किसी प्रीवियस हैकाथॉन से थीम सेम हो। लाइक एआई एजेंट्स अगर आप बनाना चाह रहे हो तो प्रीवियस किसी एआई एजेंट का हैकाथॉन देख लो। सो चेक आउट कि व्हाट प्रोजेक्ट्स आर विनिंग देयर। सो इफ इससे ना थोड़ा आइडिया ऐसे आ जाता है कि हाँ उस टाइम पीरियड में ये प्रोजेक्ट जीता था, तो और ये इंटीग्रेशन से ऐसे करके ये जीता था, तो यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। इट्स नॉट बैड कि आप किसी दूसरे का प्रोजेक्ट ऐसे देख के आप इंस्पायर कर रहे हो। व्हाट यू कैन डू, जस्ट सी 2 to 3 प्रोजेक्ट्स जो आपको अच्छे लग रहे हैं एंड यू कैन मेक अमेलगमेशन ऑफ दैट। मे बी आपको कुछ ऐसे इंस्पिरेशन ऐसे ही आती है कि आप क्या बना सकते हो। बिकॉज ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हर एक इंसान कुछ अलग ही क्रिएट कर देगा। देर इज सो मच दैट यू कैन डू। मतलब एक यूजुअली अगर जो मैंने एनालाइज करा है किसी हैकाथॉन में अराउंड जितने रजिस्ट्रेशन होते हैं उसमें से 1/4 या 1/5 सबमिशंस आते हैं। तो देयर ओनली सो मच जो आप बना सकते हो उससे जो डिफरेंट हो सकता है। अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स विल बी सेम। तो आप यही कर सकते हो कि आप दूसरे प्रीवियस हैकाथॉन से आप जो विनिंग प्रोजेक्ट्स है उससे आप लर्न करो और उससे आप फिगर आउट कर सकते हो हाँ मैं कुछ बना सकता हूँ तो ठीक है। That's really great, sir. And this valuable guidance and जो अपने examples दिए हैं, that would be really very much helpful for all our participants. So like किस तरीके से वो अपने innovative ideas को use कर सकते for any hackathon. लाइक किसी स्पेसिफिक अगर लिमिटेशन वाली जो आपने बात कही कि लाइक अगर कहीं पे हमें कुछ प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी गिवन होते हैं तो वहां पर लिमिटेशंस आ जाती है, लेकिन आप अगर ऐसे हैकाथॉन्स में जहाँ पर ओपन इनोवेशन है तो आप अपनी कुछ थिंकिंग ऐड कर सकते हैं एंड कैन मेक चेंजेस एंड प्रेजेंट बाय योर ओन. तो दैट वुड बी रियली ग्रेट. So like you have won both India and globally various hackathons. So what are the key difference in expectation, presentation style and innovation depth? आई थिंक सबसे आपको एक्सपेक्टेशंस और ये बहुत सारी चीजें सब डिपेंड उस पर करती हैं कि प्राइस अमाउंट कितना है, आई गेस। तो जैसे आई थिंक कम्युनिटी हैकाथॉन्स उतना प्राइस अमाउंट नहीं देख सकते, तो फिर वो सब्स्टिट्यूट करते हैं मे बी शायद स्पॉन्सरशिप्स या फिर क्रेडिट से। जैसे ओपन एआई का क्रेडिट अगर हो गया या फिर किसी चीज का ट्रायल क्रेडिट हो गया तो उससे वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अब ये है कि जितना ज्यादा बड़ा प्राइस होगा हैकाथॉन का, इट स्केल आल्सो इंक्रीजेस आपके कॉम्पिटिशन्स में। लाइक यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में जो हैकाथॉन्स हो रहे हैं या गवर्नमेंट जो हैकाथॉन करा रही है, दे गार्ड रेल देम लाइक सिर्फ बीटेक या फिर बीएससी या जो भी है, सिर्फ 4 ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एसआईएच आई थिंक इंक्लूड्स ऑल द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ओनली जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में। बिकॉज द प्राइस अमाउंट आपको यूजुअली ज्यादा ही मिलेगा, तो उधर कोई लिमिटेशन नहीं होती स्टूडेंट्स की कि हाँ देर विल बी हैकाथॉन्स की हाँ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आ सकते हैं, बट मेजोरिटी आपको हैकाथॉन्स इंटरनेशनली वो मिलेंगे। इट्स ओपन फॉर ऑल, स्मॉल किड टू ओल्ड पर्सन, कोई भी आके प्रोजेक्ट सबमिट कर सकता है। तो उस केस में आपको वही एक्साइटिंग फैक्टर आई थिंक उधर से ही आता है
कि आप क्या कुछ ऐसा बना सकते हो जो आउटस्टैंड कर जाए इन सबके बीच में से। अब ये आई थिंक इंटरनेशनली जैसे प्राइस क्योंकि ज्यादा होता है, तो एक्चुअली कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, एग्जैक्टली क्या था वो? लाइक कि आप लाइक आपने इंडिया में एंड ग्लोबली भी आपने काफी हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट किया है, सो हाँ आपने जो प्रेजेंटेशन लाइक दिया होगा आपका प्रोजेक्ट का, या फिर जो एक्सपेक्टेशन आपकी थी उस हैकाथॉन से, सो क्या डिफरेंस था इंडिया में एंड ग्लोबली? हाँ, ग्लोब अब ये डिफरेंस ये आता है क्योंकि इंटरनेशनल है, तो इट्स नॉट लाइक, हाँ कुछ हैकाथॉन्स में आप जा सकते हो उधर, बट यूजुअली मैंने सारे इंटरनेशनल ऑनलाइन ही दिए हैं। ओके। इवन ईथ दिल्ली आई थिंक उसको इंटरनेशनल बोल सकते हैं, बट वो ईथ दिल्ली क्योंकि हुआ था ऑफलाइन दिल्ली में, तो फिर इट वाज प्रिटी कन्वीनियंट फॉर मी। बट यूजुअली क्या होता है कि आपको एक यूट्यूब वीडियो क्रिएट करनी पड़ती है, ये एक वीडियो क्रिएट करनी पड़ती है शोकेसिंग और डेमो। ओके। अब जो ऑफलाइन इंडिया में हैकाथॉन्स होते हैं, जैसे किसी यूनिवर्सिटी में कोई मतलब ऑर्गेनाइज करा रहा है, या गवर्नमेंट हैकाथॉन्स होते हैं, तो आप शोकेस फिजिकली करते हो। तो क्रिएटिंग अ वीडियो इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम शोकेसिंग फिजिकली। तो वीडियो में मतलब मेरा जो वो वे रहता है वो यूजुअली ये है कि मैं स्टार्ट करता हूँ एक 1 मिनट की समरी से, कि जल्दी जल्दी बोल के पूरा इनकैप्सुलेट कर दूं कि क्या प्रोजेक्ट है। देन डेमो फिर ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। आई डू एक्चुअली, इट डिपेंड्स कि कुछ हैकाथॉन्स में ऐसे बोलते हैं कि इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में कि हमें नॉन एडिटेड वीडियो चाहिए, तो आप तो फिर उसमें कुछ कर नहीं सकते, तो यू जस्ट मेक अ स्मॉल वीडियो। एट मैक्स आप 5 मिनट्स की वीडियो बना लो, इट इज समथिंग डाइजेस्टेबल। अगर आप 10-15 की बनाओगे तो उतना कोई देखेगा नहीं, तो 5 मिनट्स में थोड़ा मार्क लेके चलता हूँ। बट कभी कभार आई थिंक 7 to 10 हो जाता है। अगर मुझे लगता है कि हाँ ये वीडियो एंगेज करके रहेगी, लाइक इट हैज एन एक्साइटिंग फैक्टर, तो मैं 10 मिनट्स तक ऐसे 7 to 10 कर देता हूँ। तो आप जैसे एक टूल यूज करता हूँ मैं, टीएल ड्रॉ, तो उससे फिर क्या कहते हैं, आप वो बना सकते हो कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो वर्क कैसे कर रहा है, सारे इंटीग्रेशन वर्क कैसे कर रहे हैं, बेसिकली माइंड मैप बना सकते हो। तो ओके। वीडियो में क्योंकि मुझे द मोर इलस्ट्रेशन आई कैन शो, इट्स द बेटर इट इज कि मैं बस कम्युनिकेट कर सकूँ एफिशिएंटली कि मेरा प्रोजेक्ट है क्या। क्योंकि वीडियो में एक तो वन वे कम्युनिकेशन, तो मैं एक्चुअली करेक्ट नहीं कर सकता कि हाँ मे बी अगर जज ने कुछ दूसरा समझा तो मैं करेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे वन चांस मिलता है, तो मैं बेस्ट ट्राई करता हूँ। ऑफलाइन या फिर इंडिया के हैकाथॉन्स का ये है कि यूजुअली इन अच्छा इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में ना मोस्टली ये है कि इट्स वन टाइम जजिंग, कि आप सबमिट कर सकते हो डेडलाइन के पहले, एंड जजिंग के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ऑफलाइन में आई हैव सीन कि देर आर मल्टीपल फेजेस, जो इंडिया में आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ सबमिशंस दैट दे गेट। SIH तो आई थिंक 2 फेज में करता है, तो हाँ 2 फेज में ही करता है, फाइनलिस्ट और फिर फाइनल, तो 2 फेज में कर देता है SIH। बट अगर और कोई यूनिवर्सिटी के हैकाथॉन्स, तो देर आर लाइक कि पहले सबमिशन दो, उसके बाद जो भी उनको अच्छा लगेगा फिर वो आके आप ऑफलाइन प्रेजेंट करो। तो उस केस में आप यही कर सकते हो, आप पीपीटी अच्छी बना लो। और अगर आपका टेक्निकल हैकाथॉन है, लाइक यही मैं एक्चुअली बता रहा था कि डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्लान कंपटीशन एंड हैकाथॉन, कि बिजनेस प्लान कंपटीशन में ज्यादा फोकस प्रेजेंटेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे रहता है, कि आप प्रॉब्लम सॉल्व क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, और फाइनली जो आपका रेवेन्यू मॉडल और वो सब है। ओके। आप टेक टेक को टाइम देते हो कि जो आपने बनाया है, बट आई एक्चुअली गिव जस्ट 50% ऑफ द टाइम। बट हैकाथॉन्स में ये इट्स ऑल 100%। स्टार्टिंग में मैं बस जल्दी से इंट्रोडक्शन देता हूँ एंड जस्ट कम्युनिकेट करता रहता हूँ कि ये है, डू हैव समथिंग, मतलब आपको कोई क्वेश्चन है इसके बारे में। तो अगर उनको नहीं होता तो देन आई मूव टू सेकेंड फेज की, अच्छा और क्या है इसमें। तो थोड़ा कम्युनिकेशन अगर आप इंटरेक्शन ऑफलाइन कर सको, और आप जो भी आपके मेंटोर्स हैं जो वही जजेस होते हैं, तो उनसे अगर बात कर सको,
तो बात करके ऐसे फिर आप थोड़ा एक ट्रस्ट क्रिएट करते हो कि हाँ एक कुछ अब बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन रहा है। मे बी शायद वो कंप्लीटली नहीं बन पाए, बट इट्स समथिंग वर्थ फाइट, जो एक्चुअली विनिंग के टाइम पे बता सकते हैं कि ये बन रहा था। तो Okay. दीज आर द टू डिफरेंस। Yes, so thank you so much for such an specific advice given by you. Actually, यही specific advices like ये छोटी छोटी चीजें होती है like जो हम as a participant हम miss out कर जाते हैं. तो it will be really great if अगर हम इस चीज को ध्यान में रख के चलें. And आपने जिस तरीके से खुद से relate करते हुए इस idea मतलब ये सारे guidance बताई है like students काफी हद तक relate कर पाएंगे and they can cope up with that. Yeah. So, any final powerful piece of advice for our students who are just going to attend their first hackathon? Dream of winning big someday. Uh, Actually, advice. I think I'll just go back to मतलब इवन इफ अपने से रिलेट करके मैं बता सकता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट टू क्रिएट अ स्टैंडर्ड, इवन इफ यू डोंट विन, इतने सारे हैकाथॉन्स हैं, आपने जो बनाया है वो कहीं आप और भी ले जा सकते हो, या थोड़ी मॉडिफिकेशंस करके जो भी इंटीग्रेशन तो कह रहे हैं आप दे सकते हो। तो इट्स नॉट लाइक कि अगर आप अभी हार गए तो इट्स द एंड ऑफ समथिंग कि आपको देना छोड़ देना चाहिए। यूजुअली मैंने यही देखा है कि पीपल गिव अप ऑन दीज हैकाथॉन्स बिकॉज इट्स नॉट समथिंग जो करिकुलम से इंटीग्रेटेड है। दिस इज समथिंग कि आई थिंक अब पॉपुलर हो रहा है कि हाँ हम प्राइज जीत सकते हैं एंड कुछ एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हैकाथॉन्स आर वेरी गुड फॉर नेटवर्किंग। तो इवन आप अगर आप शुरुआत में से सोच नहीं पा रहे कि प्रोजेक्ट्स क्या बनाऊं, मैं क्या कर सकता हूँ, one thing you can do is just copy paste the requirement in AI. आप उससे कह दो कि can you explain me what this hackathon is about, and उससे related आप past hackathons या कोई similar hackathons जो पहले हुए हैं आप winning projects देख लो। जितना आप ब्रॉड अपनी अंडरस्टैंडिंग को करते जाओगे कि क्या बन सकता है, उतना ही आप फिर इट्स लाइक अ चेन। लाइक मेरा हैकाथॉन विनिंग का जो स्टार्टिंग है वो भी ऐसे ही हुआ था कि बहुत सारे हैकाथॉन सारे मैंने ऑब्जर्व करा कि कैसे क्या जीत रहा है। तो थोड़ा ऐसे हल्के से एक्सपीरियंस ऐसे जो आते रहते हैं, और फिर मुझे एक टाइम पता चला कि हाँ मैं विनिंग प्रोजेक्ट्स भी देख सकता हूँ। तो उससे जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है उसके बाद बहुत स्मूथ सेलिंग हो जाती है। तो अगर आप अभी जीत रहे हो इट्स ऑल वेल एंड गुड, है ना। एंड आई वुड से कि हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट मतलब स्टूडेंट्स को करना चाहिए, इवन बिजनेस प्लान कंपटीशन। इससे आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है कि इंजीनियरिंग का एसेंस क्या है। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि आप कुछ लाइन ऑफ कोड लिख देते हो जो रन हो जाए। हैकाथॉन्स में आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंस लेते हो कि हाँ आपको थोड़ा ऐसे अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको स्टार्टअप्स में काम करना है। मे बी आप जिस तरीके से प्रोजेक्ट बना रहे हो उससे आपको पता चले कि अब मुझे रिसर्च में जाना है, मुझे थोड़ा ऐसे रियलाइज हुआ इसलिए मैं मास्टर्स के लिए जा रहा हूँ अभी। Okay. तो अ, तो आप उस हैकाथॉन्स देते समय आपको थोड़ी ये चीजें रियलाइज होती हैं। तो advice is just straight ki just understand the hackathon, understand what the judges might need, check any previous hackathon projects that you think are pretty good and वो win कर चुके हैं। उसके बेसिस पे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ा के प्रोजेक्ट्स क्रिएट करो। एंड इवन इफ यू विन एंड दैट्स ऑल वेल एंड गुड, आप और दो, इट्स गुड। बट इवन इफ यू डोंट विन, यू डोंट नीड टू वरी, बहुत सारे और हैकाथॉन है अब तो। मतलब हर महीने आप कोई ना कोई हैकाथॉन दे के जीत सकते हो। तो इट्स लाइक दैट। तो इट्स अ वेरी फन एक्सपीरियंस अब जो हैकाथॉन का पूरा ओवरऑल सीन है। Yes. Aditya, thank you so much for sharing such honest and tactful insight today with us. And this episode was packed with real world strategies. And for anyone who just wanted to prepare or just started their preparation for ASAC 5.2, these guidance really very valuable for them. And to everyone watching this episode, remember one thing that hackathon aren't won by luck. They are won by preparation, clarity, and execution under pressure. This is your host, Kritika Sharma, and stay tuned for more such impactful and innovative episode powered by Ace Hack. And for the till the next episode, keep hacking, keep building. Thank you.